شہر قائد میں فلور ملز کی ہڑتال ختم ہونے کے بعد آج سے آٹے کی سپلائی بحال ہونے کا امکان ہے۔ جنرل سیکرٹری ریٹیلر ایسوسی ایشن فرید قریشی نے ملز مالکان کی مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں آٹا سستا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ فلور ملز اور حکومت کے مذاکرات کامیاب، شہر میں آٹا بحران کا خطرہ ٹل گیا۔ ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرید قریشی کے مطابق فلور ملز نے کہا ہے کہ چیک پوسٹیں ختم ہونے کے بعد آٹا سستا ہونے کا امکان ہے۔ لوگوں نے ہڑتال کے باعث 3 سے 4 دن مشکلات کا سامنا کیا۔ کل اور پرسوں میں یہ تمام جو چیز بھی سامنے ہوگی وہ سب عوام کو تکلیف جو اتنی برداشت کی ہے، جو 3-4 دن تک آٹا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی تھی۔ پاسکو کے ذریعے فلور ملز کو گندم ملنے کے بعد شہر میں آٹے کی سپلائی بحال ہو جائے گی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی کی 11 یوسی سے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 7 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، جبکہ جماعت اسلامی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی کو کوئی یوسی نہیں جیت پائی۔ مزید اقتدار انور کی رپورٹ میں دیکھیے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق کراچی کی 11 یوسیز میں سے پیپلز پارٹی نے 7 نشستوں پر میدان مار لیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 97 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی نے لیاری ضلع جنوبی کی یوسی 2 بہار کالونی اور ضلع غربی یوسی 8 مومن آباد، یوسی 1 اورنگی، کیماڑی کی یوسی 2 بلدیہ ٹاؤن، ضلع وسطی نیو کراچی کی یوسی 4 اور 13 اور ضلع کرنگی یوسی 2 میں کامیاب ہوئی۔ جماعت اسلامی نے چیئرمین وائس چیئرمین کی 4 سیٹوں پر فتح حاصل کی۔ ادھر جماعت اسلامی نے یوسی 3 شاہ فیصل، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن یوسی 6، اورنگی یوسی 8 اور لانڈی یوسی 8 میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح کراچی میں جماعت اسلامی کے ممبران کی تعداد 86 ہو گئی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے پاس کراچی میں 42 نشستیں ہیں۔ مسلم لیگ نون 7، جے یو آئی 3، ٹی ایل پی 1 اور آزاد امیدوار کے پاس 1 نشست ہے، جبکہ چیئرمین وائس چیئرمین کی 9 نشستوں کے نتائج روکے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ سندھ نے تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ کو حلال کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ کے خلاف بات کی۔ حافظ نعیم کو 3 بجے ہی بلدیاتی الیکشن میں شکست نظر آ گئی تھی۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ سندھ آرکائیو کمپلیکس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن بولے، اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ کو پاکستان میں لا ڈلے کی حیثیت ملنا ملک کے لیے خطرناک ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے فارن فنڈنگ کیس میں بھارت اور اسرائیل سے پی ٹی آئی اور عمران خان فنڈنگ لیتی ہے، انلیگل فنڈنگ لیتی ہے، جو پاکستان کی سیاست میں استعمال ہوتا ہے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کل کے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں کراچی سمیت پورے سندھ میں پیپلز پارٹی نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے۔ جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام برسوں سے جانتے ہیں۔ حافظ نعیم نے سپہر 3 بجے ہی پریس کانفرنس کی اور شکست کا اعتراف کر لیا تھا۔ 3 بجے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جماعت اسلامی کے امیر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عوام نکلیں باہر، برائے مہربانی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، گھروں سے نکلو باہر۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں گھر سے نکلو۔ جو کنونسنگ وہ کر رہے تھے، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی شکست دیکھ رہے تھے، ان کو پتا ان کے لیے لوگ نہیں نکلے، وہ لوگوں کو منتیں کر رہے تھے، ترلے کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے نکلو، ہمیں ووٹ دو۔ ان کو ووٹ نہیں پڑ رہا تھا، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ صوبائی وزیر نے مطالبہ کیا کہ نیب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف تحقیقات کرے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی پر بڑا الزام عائد کر دیا۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ الخدمت کے فنڈز کو ضمنی بلدیاتی انتخابات کی مہم جوئی کے لیے استعمال کیا گیا۔ کون سا جیالہ میئر کراچی کا امیدوار ہوگا، اس کا فیصلہ جج بلاول بھٹو کریں گے۔ تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ کیمپ آفس میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی والوں نے پریزائڈنگ آفیسر کو فون کر کے دھمکی دی، کہا کہ پوری زندگی کورٹ کے چکر لگوائیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے الخدمت کے فنڈ کو ضمنی بلدیاتی انتخابات کی مہم جوئی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے بہت افسوس کرنا پڑتا ہے، الخدمت کا جو فنڈ ہے، جو لوگ فطرہ دیتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ خیرات دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ الخدمت جا کر
किसी फलाई काम पर इस पैसे को खर्च कर गए। जमात इस्लामी ने अल खिदमत के कामों को अपनी इलेक्शन की कैंपेन में इस्तेमाल किया है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर बोले कि शहर कायद में अपनी मेहनत से अपने कामों के जरिए जगह बनाई है। इन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कराची के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, बिलावल भुट्टो जरदारी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर एतमाद किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाया है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि जियाला मेयर मुंतखब होगा तो कराची वालों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत का मौका मिलेगा। जमात इस्लामी को बल्दियाती निज़ाम में आने का शौक है तो वो डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए हमें दरख्वास्त दे सकते हैं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। बात करें मरदमशुमारी की तो कराची की आबादी 1,84,00,000 तक पहुंच गई, जबकि शहर के 34 ब्लॉक्स में आबादी सिफर रही है। सातवीं मरदमशुमारी के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक सूबा सिंध की आबादी 16.54% इजाफे के साथ 5,57,70,000 और कराची डिवीज़न की आबादी 14.72% इजाफे के साथ 1,83,84,000 से ज़ायद हो गई। कराची के 34 ब्लॉकों को 390 इमारती ढांचों में आबादी सिफर शुमार होने का इंकशाफ हुआ। इदाराई शुमारियात के मुताबिक 7 मई तक कराची डिवीज़न में 20,33,667 इमारती ढांचे शुमार हुए, जिनमें घरेलू यूनिट्स की तादाद 28,87,886 रिहायशी यूनिट्स है, जहां 31,77,601 घर शुमार हुए, जिनमें से 31,01,340,938 घरों की मरदमशुमारी में 1,83,84,340 अफराद की मरदमशुमारी हुई, जिनमें 97,34,094 मर्द, 86,48,029 खवातीन और 2,217 ख्वाजा सरा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का कहना है कि सूबाई सिंध की आबादी 8.5 करोड़ से ज़ायद है। डिजिटल मरदमशुमारी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। पीपल्स पार्टी की कवर कमेटी के रुकन सेनेटर ताज हैदर ने पॉलिसी बयान जारी कर दिया। कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर 35 अरब रुपए डबो दिए गए। सिंध में बड़ी आबादी को शुमार नहीं किया गया। इदारे शुमारियत की जानिब से सिंध की आबादी को शुमार ना करना हैरतनाक है। नई मरदमशुमारी के नताइज 2017 से ज़्यादा मुतनासिब हैं। ताज हैदर ने कहा कि इदारे शुमारियात के मुताबिक 43,838 ब्लॉक्स है। हर ब्लॉक में 250 घर लाजमी होते हैं। शहरी जमातों को सोचना चाहिए कि देहात की तरक्की के बगैर शहर कैसे तरक्की करेगा। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात बराए 2023 का आगाज़ हो गया। 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए पहले ही रोज़ बदनज़मी से तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। रातों रात इम्तहानी मराकज़ तब्दील होने पर तुलबा परेशान हो गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का भी दौरा किया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज होते ही मसाइल के अनबार लग गए। अल हिकमत स्कूल इंतजामिया इम्तहानी मरकज कायम होने से बेखबर निकली। औरंगी टाउन का हब सेंटर भी तब्दील कर दिया गया। इकरा जदीद स्कूल का हब सेंटर तब्दील करके औरंगी नंबर 9 हब सेंटर बना दिया गया, जबकि KPS स्कूल का इम्तहानी सेंटर भी तब्दील करके गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सऊदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली शाह ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कुछ स्कूल मालिकान ने सेंटर बनाने के लिए इनकार कर दिया। प्राइवेट स्कूल हैं, उनको हम नहीं कुछ कह सकते, तो इसी तरह से जो वो सेंटर जो है हमने एंड टाइम पर चेंज किए और हमने बच्चों को भी बताया और सुपरटेंडेंट्स को कहा है कि जी जो भी बच्चा आए तो वहाँ पे उनका इम्तहान लिया जाए ताकि उनका टाइम और वक्त ज़ाया न हो। तो ये हमने हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रिक को खत लिखा मगर कोई पुरसान हाल नहीं। कि इलेक्ट्रिक बदमस्त हाथी है, उसे मिनिस्टर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कैमरामैन टीम के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सानवी तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तहानात के पहले ही रोज़ बदनज़मी सामने आ गई। कई तालिब इल्मों के इम्तहानी मराकज़ रातों रात तब्दील कर दिए गए। तालिब इल्मों और उनके वालिदैन की दौड़ें लग गई। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए।
ثانوی تعلیمی بورڈ کی نااہلی یا اسکول انتظامیہ کی ہردرمی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے امتحانی مراکز پیپر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے یکایک تبدیل ہو گئے۔ سینٹرل گرامر اسکول میں پیپر کے لیے آنے والے طالب علموں کے اس وقت ہوش اڑ گئے جب کہا گیا انہیں میجر ضیاء الدین عباسی شہید اسکول جانا ہوگا۔ وہاں سے بھی انہیں لال جھنڈی دکھا دی گئی تو طلبہ اور ان کے والدین پھر باغم باغ اسلامیہ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول پہنچے، جہاں بالآخر انہیں ایک طویل جدوجہد کے بعد پیپر دینے کی اجازت مل گئی۔ طالبات کو دریاں بچھا کر بٹھایا گیا۔ یوں 9:30 بجے شروع ہونے والا پیپر 10:30 بجے شروع ہوا۔ طالبات اس صورتحال پر کافی پریشان نظر آئیں۔ کہا ہمیں پیپر کے لیے پورا وقت نہیں دیا گیا۔ اسکول والے بھی بتاتے نہیں ہیں، صرف فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، پرسنل کوئی میسج نہیں آتا کہ 9 میٹرک کا بھی پیپر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹائمنگ کا بھی کچھ نہیں کرتے ہیں کہ جو ٹائم کو دیکھ لیں تو یہ لوگ وہ کر لیں کہ سینٹر آپ کا یہاں پہ، آپ لوگ یہاں چلیں۔ طالب علموں کے ساتھ ان کے والدین بھی غیر یقینی صورتحال پر مشتعل نظر آئے۔ بولے سینٹر تبدیل ہونے کی بروقت اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ ہمیں کہہ دیا کہ آپ میجر ضیاء الدین عباسی شہید ہاسپٹل میں جائیں۔ ہم وہاں کے چلے گئے، اسکول تھا وہاں سے بھی ہمیں منع کر دیا کہ یہاں کے آپ کے بچوں کا نہیں ہے، آپ جائیں اسلامیہ اسکول۔ ہم یہاں پر آئے، یہاں بھی ہمارے بچوں کا رول نمبر نہیں تھا، لیکن اسکول انتظامیہ نے ہمیں یہاں بٹھا دیا کہ ہم آپ کے بچوں کا پیپر کروائیں گے۔ 8 بجے سے ہم لوگ خوار ہو رہے تھے، ہمیں تھوڑی پتا تھا سینٹر چینج ہو جائیں گے۔ ایک اسکول دوسرا اسکول، یہ چوتھا اسکول تھا جہاں آ کے ہمیں پیپر دینے کے لیے، وہ بھی اتنی سورس کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ بورڈ والوں نے جب یہاں لا کے کال کری ہے کہ ہاں جی آپ اپنے بچوں کو بیٹھائیں، جب اسکول والوں نے بھی ہمیں لیا۔ آج 9ویں جماعت کے طالب علموں کا کمپیوٹر کا پیپر تھا۔ پیپر کا دورانیہ 3 گھنٹے پر محیط تھا۔ امتحانی مرکز میں یقین دہانی کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ کیمرامین احسن امین کے ہمراہ محمد جواد، آصف سٹی 21۔ بریک کے بعد خبر شامل کریں گے۔ سندھ سرکار نے محکمہ بلدیات کے 2 چیف ڈرافٹس مین کو 18 سے 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے محکمہ بلدیات کے 2 چیف ڈرافٹس مین کو 18 سے 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے 2 چیف ڈرافٹ مین ہیں جن کو 18 سے 19 گریڈ میں ترقیاں دے دی ہیں، جس کا صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن ورک کوآرڈینیشن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ ترقیاں پانے والوں میں عبدالغفار عرف ضمیر حسین بھنگر اور بھائیوال خان علمانی شامل ہیں، جن کو 18 سے 19 گریڈ میں ترقیاں دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوہڑیوں۔ سندھ سرکار نے 18 گریڈ کے 4 افسران کو 19 گریڈ میں ترقیاں دے کر ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا ہے۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ سندھ سرکار نے 18 گریڈ کے 4 افسران کو 19 گریڈ میں ترقیاں دے کر ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ سندھ کے محکمہ برائے انفارمیشن سائنس و ٹیکنالوجی میں انتظامی عہدے پر ڈیٹا پروسیسنگ افسر کا 4 سالوں سے راج قائم ہے۔ 4 سیکشن افسران کی اسامیوں پر تعیناتیاں 3 افسران بھی اختیارات سے محروم ہیں۔ صرف ڈیٹا پروسیسنگ افسر عبدالرشید بیمن کے فرمان اثر دکھاتے ہیں۔ محکمہ انفارمیشن سائنس و ٹیکنالوجی میں انتظامی پوسٹ سیکشن افسر بجٹ کے پوسٹ پر گزشتہ 4 سالوں سے 17 گریڈ کے ڈیٹا پروسیسنگ افسر کا راج قائم ہے، جس کو ڈی ڈی او کے بھی اختیارات دیے گئے، جبکہ محکمہ میں 4 سیکشن افسران کی اسامیاں ہیں، جن میں سے 1 اسامی سیکشن افسر بجٹ کی اسامی خالی ہے، جبکہ سیکشن افسر جنرل ٹیکنیکل اور ایڈمن افسر تعینات ہیں، لیکن تینوں بے اختیار ہیں۔ اختیارات صرف ڈیٹا پروسیسنگ افسر کے پاس ہی موجود ہیں، جس کے باعث افسران میں تشویش پایا جاتا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے 20 گریڈ میں تعینات 14 افسران نے چھٹیاں ختم ہونے کے بعد عہدوں کا چارج دوبارہ سنبھال لیا۔ 20 گریڈ کے افسر سعید احمد ایوان نے سیکرٹری ٹریننگ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ اور سید اعجاز علی شاہ نے سیکرٹری داخلہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ 20 گریڈ کے افسر شفیق احمد، عبدالوحید شیخ، عبدالعلیم لاشاری، محمد علی کھوسو نے ذمہ داریوں پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ شہریوں کو گیس بحران ذہنی اذیت سے دوچار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی مالی اور معاشی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ لیاقت آباد، قائد آباد، بلدیہ ٹاؤن، گلشن اقبال، بلاک 16 اور سائٹ ٹاؤن سمیت مختلف پوش اور پسماندہ علاقے گیس کے مسائل سے متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کے باعث کھانے کی تیاری کا عمل شدید متاثر ہوتا ہے۔ گیس کی بندش مشکلات میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔
होटलों से खाना मंगवाने से अखराजात बढ़ गए। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC का कहना है कि गैस प्रेशर कम मिलने के बावजूद बिला ताअतुल गैस की फराहमी के लिए कोशां हैं। और नाज़रीन, मौसम गर्म होते ही बिजली के मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग ने डेरे डाल दी, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। बिजली की बंदिश ने ताजरों और दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल कर दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। सख्त गर्मी और बिजली की आंख मचोली से ताजरों के लिए कारोबार करना इम्तिहान बन गया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में 8 घंटों की लोड शेडिंग ने ताजरों और दुकानदारों को परेशान कर दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर जावेद शम्स का कहना है कि बिजली के मसाइल से के इलेक्ट्रिक हुकाम को आगाह करने के बावजूद बिजली की बंदिश जारी है। ताजरों को इस नहज पर ना पहुँचाया जाए कि लोड शेडिंग से आजिज़ा कर सड़कों पर आ जाएँ। हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि ताजिर और आवाम रोडों पर आ जाएँ, एहतजाज करते हैं, दुकानें बंद करते हैं, क्योंकि जब हमारा कारोबार बिजली से है और बिजली नहीं होगी हम कारोबार नहीं कर सकते। महंगाई ने वैसे जीना मुहाल कर दिया है। अगर इक्का दुक्का कोई कस्टमर आ भी जाता है तो आप यकीन कीजिए कि वो बिजली ना होने की वजह से वापस चले आता है। दुकानदारों को कहना है कि बिजली ना होने के सबब खरीदारों को होम अप्लायंसेस और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया चेक नहीं करा सकते। इसकी वजह से फरोख्त मुतासर हो रही है। फ्यूल इतना महंगा है कि वो बारे में नहीं आता। दूसरी तरफ महंगाई इतनी बड़ी हुई है कि कस्टमर भी नहीं है। और लाइट आती है, अब 11:30 बजे लाइट जाती है, 1-1:30 बजे लाइट आती है, 2:30 बजे दोबारा लाइट चली जाती है। किसी को सामान चेक कराना होता है, हमारे को कस्टमर हमारा वैसे ही चलाता है, वैसे कस्टमर नहीं आता, किसी को चेक करा उसके फौरन बाहर चले आता है। ताजरों का हुकूमत और के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुतालबा है कि मार्केटें, बाजार और कारोबारी और तिजारती मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग ना की जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल रह सकें। कैमरामैन रफ़ीक आगा के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। के इलेक्ट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की 20 साल मुद्दत 20 जुलाई 2023 को ख़त्म हो जाएगी। मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के पेश नज़र नेपरा को 20 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्त दी है। नेपरा ने इस ज़मन में तमाम स्टेक होल्डर्स और शहरियों से 14 रोज़ में राय तलब कर ली। कराची चिड़ियाघर में हतनी नूरजहां की मौत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी की अदालत ने दरख्वास्त गुजार इमरान अजीज एडवोकेट और KMC के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो 10 मई को सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी की अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार इमरान अजीज एडवोकेट का कहना था कि 3 मई को जब हमने दरख्वास्त दायर की और उस वक्त अदालती रवैये पर हम पर उम्मीद थे कि जिम्मेदारान के खिलाफ FIR के इंदराज का फैसला फौरी तौर पर सुनाया जाएगा, लेकिन हमारा मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाना बेहद हैरान कुन था। 3 मई 2023 को समाअत हुई है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में। तो हमें जिस तरह से रिस्पांस दिया गया था और हमने जिस तरह केस पेश किया था, मुझे लगता था कि हमारी FIR अलाउ हो जाएगी। लेकिन जब ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने 5 मई के लिए ऑर्डर पर रखा तो पूरा दिन उन्होंने हमें बिठा के रखा और तकरीबन 1 बजे के बाद, जुमे वाले दिन 1 बजे के बाद उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर साउथ में ADJ साउथ में ट्रांसफ़र कर दिया, जो हमारे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि ऑर्डर पर रखने के बाद किस तरह उन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कोई एडवर्स ऑर्डर आता है तो मेरी तरफ से CP तैयार है, इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे। दूसरी जानिब KMC के वकील हसन आब्दी का कहना था कि हमने साल 2021 से अब तक का तमाम तर डेटा मौजिज़ अदालत के सामने पेश किया है कि यह हतनी को कब और कितनी मरतबा बैरून ममालिक के माहिर डॉक्टरों की टीम ने देखा, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हाई कोर्ट ने जिनको अपॉइंट किया था, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्हीं की अंडर सुपरविजन हमने इसको ट्रीट किया। उसके बाद वो पर्सनली पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके उन्होंने उसको ट्रीटमेंट किया और जो ट्रीटमेंट वो रिकमेंड करके गए थे हम उसी तरह उसको ट्रीट कर रहे थे। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इंसान कोशिश कर सकता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, वो नहीं बच सकी, अल्लाह की उसमें मर्जी थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो कि 10 मई को सुनाया जाएगा। कैमरामैन गुलफाम के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। शेरशाह कबाड़ी मार्केट की रौनकें भी महंगाई की लपेट में आ गई। दुकानदारों ने शिकवा किया है कि इम्पोर्टेड मसनूआत पर ड्यूटीज़ और टैक्सीज ने कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासर किया है। कमर तोड़ महंगाई ने शेरशाह कबाड़ी मार्केट को भी जकड़ लिया। टैक्सेस की भरमार के बाइस ताजिर परेशान हो गए। ताजिर कहते हैं चारों सूबों से लोग इस मार्केट में खरीदारी के लिए आते थे, मगर अब इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगने के बाद यहाँ की रौनकें पहले जैसी नहीं रही। कुछ साल पहले जो रौनकें थी वो बहुत ज़बरदस्त रौनकें थी। यहाँ पे चारों सूबों का कस्टमर व्यापारी आता था, बाहर से भी इंपोर्टर आते थे, कुछ सामान लेके जाते थे इधर से, तो वो भी आना बंद हो गया क्योंकि यहाँ की हालत देख के। अब जो चीज़
2000 की लेते थे 5000 की बेचते थे, आज वही चीज़ 8000 की लेते 10,000 की बेचते हैं। शेरशाह की बरसों पुरानी इस कबार मार्केट में बैरून ममालिक से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट समेत दीगर सामान लाकर फरोख्त किया जाता है, मगर हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट पर आयद टैक्सेस ने यहाँ मौजूद ताजरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन कयूम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले की ना तजुर्बाकारी हुकूमत सिंध की जानिब से शुरू किए जाने वाले ज़िला वस्ती के 100 पार्कों की बहाली के मंसूबे में रोड़े अटकाने का सबब बनने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ना तजुर्बेकार अमला सरकारी और निजी इमलाक का दुश्मन बन गया। लियाकताबाद का तारीखी बिल्की सैदी के नाम से मंसूब पर्दा पार्क एक बार फिर सॉलिड वेस्ट के निशाने पर आ गया। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड से मुंसलिक पार्क के मरकजी गेट से मुत्तसिल कचरा कुंडी से शदीद ताफुन उठ रहा है, जहाँ कचरा उठाने के दौरान सॉलिड वेस्ट के निजी कॉन्ट्रैक्टर के अमले ने पार्क की दीवार गिरा दी। ये दीवार, ये जो मशीनें लाते हैं उठाते हैं कचरा, ये मशीनें धड़ 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 करके मारते हैं, तो इसकी वजह से ये दीवार गिर जाती है। इलाके की खवातीन कहती हैं कि कचरा उठाने के दौरान बार बार पार्क की दीवारें गिरा दी जाती हैं। अहले मोहल्ला चंदा करके बनाते हैं। पार्क के इतराफ 4 स्कूल और कॉलेज हैं। तलबा और उस्तादजा कचरा कुंडी से सख्त परेशान हैं। यहाँ पर 4 स्कूल रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3 तो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं, 3 इसमें प्राइवेट स्कूल्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कंप्लेन कर करके थक गए, लेकिन यहाँ से कचरा ना हटा। एक ये वाहिद आसरा था हम लोगों का कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे या थक जाते थे या कोई लाइट नहीं है कुछ में, तो हम लोग इधर आके ज़रा सी देर को, चूँकि पर्दा बाग था तो हम खवातीन ईजीली यहाँ पे अपने आप को मेंटेन कर सकती। लियाकताबाद सिंधी होटल के इतराफ गुंजानाबाद इलाके में ये पार्क खवातीन और बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, मगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कचरा कुंडी का खात्मा ना किए जाने के बाइस बिल्की सैदी पार्क की बहाली का मकसद फौत होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के पार्कों को उनकी असल हालत में बहाली का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। अजीज़ाबाद में जुड़वा पार्क खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहे हैं। पार्क में घास बची है, ना टेबल्स। शहरियों ने भी यहाँ का रुख करना छोड़ दिया। तफसीलात जान लेते हैं जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में उजड़े हुए पार्कों की हालत जार ना बदली जा सकी। आज भी बेशतर मुकामात ऐसे हैं जहां पार्क तबाहाली का मंजर पेश कर रहे हैं। अजीजाबाद ब्लॉक 2 के जुड़वा पार्क्स भी इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गए। न हरियाली है, न ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद कहते हैं सिटी 21 की निशानदही पर पार्क की तज़य्युन आराइश जल्द शुरू करेंगे। पार्क की पोजीशन खराब है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 पार्क जो बनाने का डीसी साहब का प्रोजेक्ट था कि जी इस साल में हम 100 पार्क करेंगे। अभी हमने कल परसों आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने भी कुछ इनॉग्रेशन किया है एंड डॉक्टर आसिम साहब ने भी किया है। तो इस तरीके से हम वक्तन फ़वक्तन अपने पार्कों को मेंटेन कर रहे हैं और इसे रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 100 पार्क का हम अपना जो टारगेट है वो पूरा करेंगे। 100 पार्क की तामीर की दावेदार जिला वस्ती की इंतजामिया की बातें सिर्फ बातों तक ही महदूद हैं। आवाम को बेहतर माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जुनेद जावेद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिम जोकियों कत्ल केस में बुरासा को दय्या देने से मुतालिक रुकन सिंध असम्बली जामा वैस की नाअहली की दरख्वास्त पर स्पीकर सिंध असम्बली, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नाजिम जोकियों कत्ल केस में बुरासा को दय्या देने से मुतालिक वकला की जानिब से दायर मेंबर सिंध असम्बली जामा वैस की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि नाजिम जोकियों कत्ल केस में मेंबर सिंध असम्बली जामा वैस ने बुरासा से सुलह की, उसके एवज़ बुरासा को दय्यत अदा की गई। दय्यत देने का मतलब कि जुर्म तस्लीम करना है। जामा वैस दय्यत देने के बाद सादिक और अमीन नहीं रहा। स्पीकर सिंध असम्बली को जामा वैस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी ने पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी के कत्ल केस में गवाहों की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कांता कुमारी कत्ल केस की समाअत में गिरफ्तार मुलजिम और मकतूला के शोहर मेघराज आनंद को जेल से अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के गवाह एक बार फिर अदालत से गैर हाजिर रहे। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब किया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। मुकदमे में मकतूला का शोहर आनंद गिरफ्तार है। मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना बगदादी में मुकदमा दर्ज है। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होने पर मकामी सराफा हुमा मार्केट में 1 तोला सोना 1400 रुपये महंगा होकर 2,26,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया।
और 1 तोला चांदी 30 रुपये इजाफे से पहली बार 2900 रुपये की बुलंद सतह कायम कर गया है। आलमी मार्केट में सोना $5 महंगा होने पर मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1400 रुपये महंगा हो गया है। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल की तेज़ी से बढ़ती स्मगलिंग पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। सदर एसोसिएशन ने कहा कि स्मगलिंग से कौमी ख़जाना उसे अरबों का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल को गैर महफूज मकामात पर स्टोर करने से बड़े जानी और माली नुकसानात का ख़तरा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत के लिए एक और चैलेंज। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, खतरे की घंटी बजा दी। सदर एसोसिएशन अब्दुल्ला अफरीदी ने खत में कहा कि ईरानी बॉर्डर से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग खुल्लम खुल्ला हो रही है। बड़े पैमाने पर स्मगलिंग से कौमी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद का कारोबार खत्म हो रहा है। गैर मेयारी फ्यूल आवाम को सरकारी रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आज़म स्मगलिंग को फौरी रोकें। यार खुदा के लिए ईरान से इतना तेल आ रहा है, कम अज कम 80,000 लीटर गाड़ी, 90,000 लीटर गाड़ी ईरानी तेल। ये तो न गवर्नमेंट को फ़ायदा है न आवाम को फ़ायदा है। न एक तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलते, दूसरी बात जितना तेल वहाँ से ला रहा है ना ईरान से 100, 150, 200 लीटर इन लोगों को सस्ता मिलते, हम लोग को उसी रेट पे तेल मिल रहा है ना, आवाम को तो फ़ायदा नहीं है ना। अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि पाइपलाइन के जरिए फ्यूल की सप्लाई पर मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों से बात भी हुई और यकीन दहानी भी करवाई गई। इसके बावजूद ऑयल टैंकर्स के कोटे और सिस्टम दुरुस्त करने पर कोई इकदाम नहीं किए गए। यही सूरत हाल रही तो हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेटर भी हमने भेज दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया, फोन भी किया, अभी तक हम लगा है ना, कोई जवाब नहीं देते। जब तक हम लोग हड़ताल नहीं करें या एहतजाज पे नहीं जाएंगे हम लोग का मसला नहीं होते। जब भी हम लोग एहतजाज पे जाएंगे ऑयल टैंकर, फिर वहाँ से बोले ऑयल टैंकर माफिया है ना, आवाम को भी तकलीफ है। मेरे भी हम ये पैगाम देते आवाम को, अगर हम लोगों का मसला हल नहीं हो जाएंगे चंद दिनों पे, हम लोग एहतजाज में भी जाएंगे, हड़ताल भी कर लेंगे। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में ये भी इंकशाफ किया गया कि स्मगल होने वाले पेट्रोल और डीजल को गैर महफूज मकामात और आबादियों के नजदीक स्टोर किया जाता है। इसकी वजह से इन आबादियों को खतरात लायक हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान में पहले सुपर हीरो की तैयारियां शुरू हो गई। कराची के 11 साल कम उम्र विजुअल आर्टिस्ट इब्राहिम ने मुसलमान मैप के नाम से सुपर हीरो बना दिया, जिसकी पहली झलक दिखा दी गई है। मज़ीद तफसीलात राहिल बेग से। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का कम उम्र वर्चुअल आर्टिस्ट मौजूद है, जो कि ना कि ख़ुद अपने करैक्टर तख्लीक करते हैं और उसके बाद उनकी जितनी भी एनिमेशंस है उसको बनाते हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में कम उम्र हैं और अभी उनकी उम्र 11 साल है और गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है। और ये हम पाकिस्तान के मारूफ अदाकार सऊद कासमी और जवेरिया सऊद के साहबजादे इब्राहिम सऊद कासमी साहब हैं। तो ये छोटा सा बच्चा है पर बड़े बड़े काम कर रहा है, तो इन्हीं से जान लेते हैं। इब्राहिम, क्या कहेंगे, अब आप दुनिया में जो है कि रिकॉर्ड कायम करने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए अप्लाई कर दिया गया है, तो क्या एक्साइटमेंट है? मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। तो चलें जी, जवेरिया भी साथ हैं तो जवेरिया से भी जान लेते हैं। जवेरिया, क्या कहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका माँ बाप ये चाहते हैं कि जितना भी उन्होंने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टाइम है, चाहे पैसा है, चाहे मोहब्बत है, चाहे एजुकेशन है, जो चीज़ भी है, तो वो उनका नाम रोशन करें। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करे। और माशाल्लाह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह पूरे रोज़े रखते हैं। हर तरह से मैंने कोशिश ये की है कि अपने बच्चों को तरबियत दें। रिकॉर्ड के लिए जो अप्लाई किया है उसके बारे में गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया है इसका, और बस तवक्को तो यही है कि इसका नाम आ जाए उसमें, और ज़ाहिर है वो सारी रिसर्च करेंगे अपने हिसाब से, जो भी है फिर अप्रूव करेंगे। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है और अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। बिल्कुल जी, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए और इस टैलेंट के लिए भी दुआ गो हैं। और इब्राहिम की बनाई गई सीरीज़ जो कि मुस्लिम कार्टून है, बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है और ना कि सिर्फ फिल्म बल्कि आलमी रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया गया है और उम्मीदें अच्छी हैं। जवेरिया हमारे साथ मौजूद थी, इब्राहिम मौजूद थे जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।